This is the final call to put the house in order. गुर तेग बहादुर सिमरिये घर नौनिद आवे धाए सब थाई होए सहाय वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह. A very warm good morning to dear dignitaries, scholars, professors, teachers, guests, and everyone present here today. I am Pushpa Tiwari, co-coordinator, Department of Computer Application, Guru Nanak College, Dhanbad, and it is my privilege to compare this webinar organized by Guru Nanak College, Dhanbad. The topic of this webinar is Concept of Liberty in Humankind and is organized to honor and commemorate the 400th birth anniversary of Sri Guru Tegh Bahadur Ji, the 9th Guru of Sikh religion. He was the leader of Sikhs from 1665 until his martyrdom in 1675. We have with us the esteemed members of governing body of Guru Nanak College, Dhanbad, members of Gurudwara Prabandhak Committee, President Guru Nanak College, Dhanbad, Sardar R.S. Chahal, Secretary Guru Nanak College, Dhanbad, Sardar Diljon Singh Grewal, our former principal, Professor P. Shekhar Sir, Principal Dr. Sanjay Prasad, teachers, and above all, the key speakers of this webinar, Dr. Amarjeet Singh from Guru Nanak Dev University, Amritsar, and Dr. Paramveer Singh from Punjabi University, Patiala. We are also honored to have Dr. Satnam Singh, Dean and HOD, Distance Education, Punjabi University, Patiala, with us. We have fond memories of Dr. Jodh Singh, former HOD, Encyclopedia, Punjabi University, who is unfortunately no more with us now. He recently passed away. We really miss his presence. We are glad to have with us his daughter-in-law, Dr. Raminder Jeet Kaur from Punjabi University, Patiala. So now, without further ado, I request, first of all, Principal Guru Nanak College, Dhanbad, Dr. Sanjay Prasad, to welcome our distinguished guests and deliver his welcome speech. Thank you, Pushpa. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Good morning, everyone. I, Sanjay Prasad, Principal Guru Nanak College, Dhanbad, feel honored to welcome you all to this webinar on concept of liberty in humankind, which is being organized to commemorate Guru Tegh Bahadur's 400th Prakash Parab. Ours is a Sikh minority degree college functioning for more than 50 years in the coal city of Dhanbad. The college, NAC accredited grade B, is affiliated to BBMK University Dhanbad and imparts teaching in the faculties of social sciences, humanities, commerce, and computer application up to degree level. I welcome our distinguished speakers, Dr. Paramveer Singh and Dr. Dr. Amarjeet Singh, who have given their consent to speak on the occasion. Thank you so much, sir, for being with us. I also welcome Dr. Satnam Singh, HOD, Punjabi University, Patiala. I welcome President of our college, Sardar R.S. Chahal, Secretary, Sardar Diljon Singh Grewal, our former principal of the college, Professor P. Shekhar Sir, members of the governing council, members of Gurudwara Prabandhak Committee, fellow colleagues, faculty members of other colleges across the country, my dear friends and students. It gives me immense pleasure to introduce our esteemed speakers. Our first speaker, Dr. Paramveer Singh, who is Professor of Professor Harbans Singh, Department of Encyclopedia of Sikhism, Punjabi University, Patiala. He has been conferred with many awards, namely Bhai Gurdas Singh Buddhijeevi Samman, Baba Banda Singh Bahadur Award,
and many more. Also, he is member of Board of Studies, Academic Council, Governing Council, and coordinator of programs dedicated to 400 Prakash Parab of Sri Guru Tegh Bahadur, organized by Punjabi University, Patiala. Apart from this, he is author of more than 15 books on Sikhism. Sir, I take this opportunity to say a few lines on our association with Punjabi University. I thank Dr. Satnam Singh Sandhu for giving us an opportunity to have MOU with Punjabi University Patiala for an outreach program and also to have a nodal academic center at our college. Thank you, sir. Our next speaker, Dr. Amarjeet Singh. He is professor and director, Center for Studies in Sri Guru Granth Sahib, Guru Nanak Dev University, Amritsar. Also, he is HOD of Guru Nanak Dev Studies Department. He is member of various Board of Studies and of the advisory committee to Sri Akal Takht Sahib. He is a prolific writer and is the author of 10 books on Sikhism. I am sure that you will feel enriched with the knowledge after completion of this webinar. Once again, I welcome all our guests and esteemed speakers. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fatah. Over to Puspa. Thank you, sir. Now, I'm glad to invite the former principal of Guru Nanak College, Dhanbad, our very own Professor P. Shekhar, sir, to introduce the subject. Good morning, everyone. My greetings on the 400th Prakash Parv of Tegh Bahadur Ji, Guru Tegh Bahadur Ji. I pay my respectful homage to the 9th Guru on the occasion of his 400th birth anniversary. He is a martyr who was hanged just opposite Sheeshganj Gurdwara near Chandni Chowk, Delhi. The 9th Guru is credited with contributing much in Guru Granth Sahib. He is credited with having created 116 Shabads, 15 Ragas, which are included in Adi Granth. It is he who included some 500 couplets from Kabir Das in the holy scripture of Gurbani. The history of Sikh Gurus, to my mind, is the history of supreme sacrifice and a continuous pursuit of liberty. So the subject chosen today is quite relevant from that point of view. They endeavored to liberate the mankind from all superstitions, from all evil, from the prevalent malpractices, from the society. They taught and practiced the philosophy of tolerance, love, and liberty. It is quite in fitness of things that the college, which is named after the first Guru, Guru Nanak Dev, has organized a webinar on the concept of liberty in humankind to commemorate his 400th birth anniversary. And I'm happy to know that some stalwarts from scholars, very learned luminaries, they are on the panel who will talk on the subject. We have Dr. Amarjeet Singh Ji from Guru Nanak Dev University, Amritsar. We have Dr. Paramveer Singh Ji from Punjabi University, Patiala. They will illuminate and ignite our minds on the subject. I will try to confine my brief introductory to the role which ought to be played by we, the teachers. I'll take you to some important
notice it. The Kothari Commission on Education said that it was in the classrooms that future of India was to be built. The teacher of teachers, the great Radhakrishnan, I'm quoting the number 2 example, said that learning was a lifelong process. Dr. Abdul Kalam said that the teachers were the builders of the nation. And Bertrand Russell, that pacifist philosopher, one of the greatest that we have in the world, wrote that the teachers were the guardians of the civilization. Today, why, after all, is there a fear that has overtaken us? Didi, The climate of fear has overtaken our beloved India. People are silenced. They are maimed. They don't speak their mind for the fear of reprisal, preferring to be silent and timid. Fear is unworthy of us. Least of all, the teachers, the leaders of the society. So it has to be, the teachers must rise to the occasion and talk sense with their students. They should come out with our classrooms should not have students who fumble and falter and fear to speak the truth. Fear is quite unworthy of us, least of all the teachers. And our classrooms, unfortunately, are no longer free to discuss and debate issues that matter. Democracy is not what you used to teach in classrooms. A government by discussion that upholds the right to opinion, the right to criticize one's own government policies and programs. In brief, the right to dissent. The fake paid news and abusive trolls are the new norm, and unleashed on social media to intimidate and coerce those who dare to speak and criticize. Educational institutions are willingly surrendering. Mark my words, I'm very emphatic about this. Educational institutions are willingly surrendering their academic autonomy. I stress the point willingly. Want to be politically correct. Products of our institution are learning what suits the big businesses and MNCs, corporate houses. Purely commercial, not a holistic learning that promotes intellectual curiosity and explores full human potential. They are simply ignorant about the mighty Indian history and civilization, the sacrifices made by the gurus and the freedom fighters and the values of the freedom movement, the making of modern India. They are quite oblivious of that, not caring much about that. The importance of democratic culture, the importance of dissenting, disagreeing, the importance of talking a spade, calling a spade, talking sense, without mingling their mind, and the constitutional guarantee of fundamental rights. These are not a consideration at all. People are not much worried about these things. It is not on the priority list either of the teachers or the students. I'm afraid I'm saying something which may not be very palatable to many of us. The youth's nirvana these days seems to lie in getting jobs in corporate houses that fetch fat salaries, eventually helping them to migrate abroad. They're least bothered about the state of affairs in the country of their birth, often holding views which are biased, one-sided, unverified, and uninformed.
as teachers, I think it is our duty to make our students conscious, responsible citizens, expressing their views fearlessly and learning to tolerate those who disagree with us. We, the teachers, must act as torchbearers of ethical and moral values, inculcating fearlessness in the youth. For being so, we have to lead by example. We have ourselves to be people with minimum fears, with no fears at all. What does a teacher lose after all? One may not get a very plumb position in the society, in the university hierarchy, in the government. That is possible. That is the only thing they have to suffer. But in the process, what they gain can be of great magnitude, great importance. We should try to inculcate fearlessness among the youth, as was rightly visualized by Gurudev Rabindranath Tagore in his famous poem, Where the Mind is Without Fear. He concludes that into that heaven of freedom, my father, let my country awake. With these words, I take leave and hand over the platform to the great illustrious Professor Pankaj. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Was I audible, Pushpa? Yes, sir, you were very much audible. Okay. Thank you, sir. Our first speaker of today's webinar is Dr. Paramveer Singh from Punjabi University, Patiala. He has been the recipient of many prestigious awards and members of several important boards. He is also associated with quite a lot publication houses also, as has already been discussed and explained by our principal, sir. So now, may I request Dr. Paramveer Singh to enlighten us with his talk. Over to Paramveer Singh, sir. Yes. Honorable Principal, Secretary, Guru Nanak College, Dhanbad. First of all, I congratulate Guru Nanak College, Dhanbad for organizing this lecture on the ideology of Guru Tegh Bahadur Ji, the 9th Guru of the 6th. And I am thankful to the Principal, Dr. Sanjay Prasad, and the Secretary of the College, Diljan Singh Garewal, and Sardar Rajinder Singh Chahal for inviting me to speak on the theme entitled Concept of Liberty in Human Mind. As all of us know about Guru Tegh Bahadur Sahab, who is known as Hinda Chadar, the sheet of Hindustan, Jagadi Chadar, the sheet of the world, Srishti Ki Chadar, the sheet of creation, Dharm Ki Chadar, the sheet of religion, Tirk Anju Ke Rakshak, the protector of Tilk and Janev, and Manviya Adhikaron Ko Rakshak, protector of human rights. We all know about Guru Tegh Bahadur with these epithets. He was in the line of Guru Nanak Dev Ji. He was the 9th Guru of the 6th, and he was born at Amritsar in 1621. So on 1st April 2021, we celebrated the 400th Prakash Purab of Guru Tegh Bahadur Ji. He was the youngest son of Guru Hargobind Sahib, the 6th Guru of the 6th, and
He was a warrior, he was a simple person. And when Guru Hargobind Sahib passed away in Kirtpur Sahib in 1644, Guru Tegh Bahadur Sahib with his family, he came to Bukala and remained there for about 20 years. And when in 1664, Guru Harkishan Ji, the 8th Guru of the Sikhs, he passed away in Delhi. But before passing this world, passing from this world, he said a word, Baba Bakale. It means the next Guru will be in the town of Bakala. This town is situated in the Amritsar district of Punjab. So the family of Guru Tegh Bahadur was residing with Guru Tegh Bahadur Sahib, and when he was appointed Guru in 1664, he visited the different places in Punjab, in Haryana, modern Haryana, and UP, Bihar, Bangladesh. He visited almost every part of the eastern state of this country, and he remained there for about 5 years. But when he left for Amritsar from Baba Bakala, we came to know about the ideology right from the beginning. What Guru Tegh Bahadur Sahib wanted to express in his ideology and what he has presented in his words. First of all, when he was appointed Guru, there were few others, Sikhs, those who from the family of the Gurus, they pretend to be the next Gurus. But one of them was Dhirmal, who declared himself Guru along with Guru Tegh Bahadur Sahib, and there were some other Gurus established themselves at Baba Bakala. So when Bhai Makkhan Chand Wala, one of the Guru Sikhs, he came to Baba Bakala. He on the occasion of Diwali, what he saw, there are a number of Gurus at Baba Bakala, and he visited almost every pretended Guru, but he couldn't get solace. Ultimately, he went to Guru Tegh Bahadur Sahib, the real Guru, where he bowed his head and presented the 5 of gold coins to the Guru. But the Guru asked him to make offering the 500 gold coins which he had promised in his prayer when he was in distress. So as he came to know about the real Guru, when he came to know about the real Guru, he declared the Guru Ladore, Sacha Guru Ladore, and he visited with Guru Tegh Bahadur to Amritsar, and when he reached Amritsar, the custodian of the Harmandir Sahib, they left the Harmandir Sahib with the locks. So Guru Tegh Bahadur Sahib, he wanted to pay homage to at Harmandir Sahib, but he came back without bowing his head to the Harmandir Sahib. But the message he gave to us, that
we have to stop enmity and hostility at all levels of life. From Amritsar, the Guru came back to Baba Bakala, and from this place went to Kirtpur Sahib. Here the Guru purchased a piece of land of Makhowal village and established a new town, renamed it in the name of his mother Nanki. The town known as Chak Nanki emerged as the present Anandpur Sahib, which came to light at the time when Guru Gobind Singh Ji created Khalsa in 1699. From Chak Nanki, Guru Tegh Bahadur Sahib visited the different places in the Eastern India. He spent more than 5 years in Eastern India. So there he visited the different parts of this country, and Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of the Sikhs, he took birth at Patna Sahib when Guru Tegh Bahadur was at Dhaka on his visit to the east, and there came Raja Ram Rai, who was sent by Emperor Aurangzeb to crush the Assam chief. So Guru Tegh Bahadur Sahib, he came to Guru Tegh Bahadur Sahib to help him, and Guru Tegh Bahadur Sahib established peace between the two forces there. So when we talk about liberty, what is liberty according to the Guru? So liberty doesn't mean when we are liberated outwardly. Liberty is something else, as defined by Guru Tegh Bahadur Sahib in his Bani. Guru Tegh Bahadur Sahib ने जो बाणी है उनकी, that is in the 15 Shabads, hymns, and the 57 sloks. So we see the impact of the Eastern languages and the society in the Bani of Guru Tegh Bahadur Sahib. So when he says in his sloks, "Te gun Gobind gayo nahi, jarab akarat keen, kaho nanak har bhaj mana, jebe jal ko meen, bikhiyan seo kahe rachyo, nimkra hoya udas, kaho nanak bhaj har mana, pare na jam ki faas, करनापो यूं ही गयो, दियो जरातन जीत, कहो नानक बज हर मना, आओ जात है बीत." Or when we read the other couplets of his Bani, we may see the impact of the Eastern languages in his Bani. So these are the Hindi words or the words from the Braj language, which are the part of the Guru Tegh Bahadur Sahib Bani. So what is the impact of the Bani of the Guru Tegh Bahadur Sahib? Actually, the impact or what is the message of the Bani of Guru Tegh Bahadur Sahib? The message is not different from the Bani of Guru Granth Sahib. So the message which is already given in Guru Granth Sahib, in the Bani of Guru Granth Sahib, from the time of Guru Nanak to the Guru Arjan Dev Ji, and the 15 Bhakts, 11 verse and 4 Gursikhs. So the Bani of Guru Tegh Bahadur Sahib is in the continuity of the previous Gurus. So that is not different from the previous Gurus, that is in the line of Guru Nanak. So we may see what the message of Guru Tegh Bahadur, the message of Gurbani in Guru Granth Sahib, ke sabna jiyan ka eko data, so main visarna jai, और न कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कारण करण करीम, कृपादार रहीम, और ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई, और जगत जलंदा रख लै अपनी कृपादार. This is the message which is
evident in the Bani of the previous gurus. So when we are talking about the Bani of Guru Tegh Bahadur Sahib, we have to see the message, this message, the message of Guru Tegh Bahadur Sahib in the light of the previous gurus. When Guru Sahib says, when Guru Sahib says, if you are a Hindu, be a good Hindu. If you are a Muslim, be a true Muslim. So this is shown in the life biographies of the gurus. As we all know that Bhai Mardana, he was a companion of the gurus, and there are other Muslim fakirs, those who are the companions or those who have very good relation with the gurus, those who came to the gurus. So one of them is Pir Saifuddin, who was living in Patiala. He was living in Bahadurgarh, that is in the Patiala district, not away from Punjab University, Patiala. He was a very good friend of Guru Tegh Bahadur Sahib, and he was he had very close relations with Emperor Aurangzeb, and he was Nawab of Agra and Kashmir. And after that, he came to this place and met Guru Tegh Bahadur Sahib. So these were the relations of the Guru with the people of other communities, those who were in the power. So, and there are other Muslim saints and fakirs, those who have very good relation with the Guru. So there was no discrimination in the Bani of Guru Nanak and in the life of Guru Nanak in the name of religion. So Guru Sahib accepted everybody in his Sangat, and his teachings were not only for the one particular community, and he spoke to every human being in his Bani. Likewise, when he visited in Dhaka, Tadar Shaista Khan was the Nawab or the governor of Bengal. He came to Guru. He came to the Guru, and he had a very good relations with the Guru when Guru was there in Dhaka. So likewise, there is a garden of Rahim Baksh and Karim Baksh in Patna Sahib. The people, those who visited this place where Guru Gobind Singh Ji took birth. So there is a Gurdwara, that is the Gurdwara Guru Ka Bagh. So this Gurdwara is in the name of this Gurdwara is on the land which was presented to the Guru by Karim Baksh and Rahim Baksh. These were also Muslims, and the other one was Khwaja Abdullah. Khwaja Abdullah, he was the Nigran. He was the in charge of the Chowki where Guru Tegh Bahadur Sahib was imprisoned in Delhi. So he resigned his post soon after the Guru's martyrdom and went to Guru Gobind Singh Ji at Anandpur Sahib. He spent the rest of his life in meditation and service to the mankind. And his son Ghulam Abbas was a Vaid of Nawab Singh. These were the relations of the Guru with the people of other communities. So there was no discrimination in the name of religion or any caste, race, or geographical area. But when we talk about the Bani of Guru Tegh Bahadur Sahib, the Bani of Guru Tegh Bahadur Sahib says that one has to visit from outer world to the inner world. So when we are living a household life, we have different problems. We every relation which is developed in our life, that is momentary, that is not permanent. This is shown in the Bani of Guru Tegh Bahadur Sahib. First of all, you have to liberate yourself from the outer world or from the vices which are the part of this world, and those who developed a society which is not free from the freedom or from the service to humanity. So what Guru Tegh Bahadur Sahib says,
So about the relations, the human relations developed in the while we are living in the household life. He says, Pritam जान लियो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदियो को काहू को नाही सुख में आन बहुत मिल बैठत रह चहु दिस के रह विपत परि सब ही संग छाटत ओ न आवत ने रह घर की नार बहुत हित जास्यो सदा रह संग लागी जब ही हंस तजिए काया प्रेत प्रेत कर भागी ए बिद को व्यवहार बन्यो है जास्यो नेह लगायो अंत बार नानक बिन हरजी को काम न आयो. Only God is eternal. He is forever. So follow the path of God and transcend yourself from the worldly life, from the household life, and from the worldly relations. So this is the message what Guru Sahib has given to the Sikhs and to the human beings. So this message, what Guru Sahib presented this message to the human beings, to the humanity. So he said that this message, in this message, one has to surrender before God. If he wanted to liberate from this society, from the worldly life, and from the evils of life, he has to surrender before God. So Guru Sahib said this is the these are the vices which are not so when we surrender to God, Guru Sahib again said, so if you have surrendered to God, so don't leave this world just for the sake of God, just to meditate in the name of God. So you have to remain in this world because God is everywhere in this world. So He's along with you, and you remain in this world and remain remain in the society. So when you follow this God, you surrender to the God, surrender before God. So then you can attain liberation from this world. And when you liberate yourself from this world, then you can liberate others also. This is the message of the Guru. So first of all, you liberate yourself, then you liberate others also. So the message in this message, the sacrifice of the Guru Tegh Bahadur Sahib is important. So this sacrifice is important for those who believe in the freedom of faith and saved humanity from the clutches of the evil and evil forces. So the people were allowed to worship in their own way on the line of their forefathers, and this was made possible by the Guru, by his sacrifice. So these persecuted people remembered the Guru in their hour of crisis, because the sacrifice of the Guru made them possible to take a sigh of relief. Guru Tegh Bahadur's sacrifice was in defense of the authentic Indian tradition of tolerance and recognition of different systems of thought and perception, and the time-honored practice which denied the ruler the right to enforce his religious ideas on the subjects. So because Guru Tegh Bahadur Sahib, he considered all humanity as one, and every little creature, ignorant or wise, black or white, God worshipper, nature worshipper, or idolater, was a precious creation of the Supreme Lord, each made according to his will, and each carrying the same hidden flame of his light in his soul. When anyone tried to torment, agonize, strangle, destroy, and physically annihilate any section of humanity in the name of any narrow creed or religion and politics, it was duty to seek all his powers and spirit of self-sacrifice for protecting and defending it.
Guru Tegh Bahadur Sahib also did so to save the entire humanity from the persecution of the contemporary Emperor Aurangzeb, who, after the possession of his kingdom, worked according to the advices of the fanatic ulemas. Not only the Hindus were persecuted during his rule, but also Christians and liberal Muslims called Shias. They were also being persecuted in the time at the time of Aurangzeb. So Guru Sahib gave this message: if you want to liberate yourself from the clutches of uh, the evil or the evil forces, you have first of all you have to liberate yourself from the vices. Then you will liberate others also. So when Guru Tegh Bahadur Sahib made his supreme sacrifice, Guru Gobind Singh, his successor, his son and successor, he wrote a couplet presenting this martyrdom. So in this couplet, the Guru Sahib says, Tilk Janju Rakha Prabh Taka, Kino Bado, Kalu Mein Saka, Sadhan Hed, Iti Jin Kari, Sees Diya, Parthi Na Utri. The Lord protected his glory and discipline of serving the cause of others, and driven by his feeling, he enacted a great holocaust in this dark age, Kaljug, to protect the honor of the innocents. He sacrificed his life. He offered his head, but never gave any expression of pain. तो धर्म के ताका ने किया, शीश दिया, परिश्रम न दिया, नाटक चेतक ये को काजा, प्रभ लोगों का आवत लाजा. So at last, in the end, in the last of his lines, Guru Sahib says, so committing this act of sacrifice for the sake of Dharma, he gave up his head, but never left his insistence on truth. Under the veil of truth, the dramas, and bad deeds done to deceive others make the spirituality authoritative persons ashamed of such hypocrisies. So, Guru Sahib breaking the body picture on the head of the king of Delhi, the great act as was done by the Guru Tegh Bahadur. As soon as Guru Tegh Bahadur left this world, became full of grief. Cries of distress were heard all around, whereas in the heavens resounded the ovation and applause. ठीकर फोर दिली सिर प्रपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक. So what was the impact of this martyrdom? Guru Gobind Singh Ji created Khalsa, but before Guru Gobind Singh created Khalsa, so this is the evidence from the Muasir Alamgiri. So this is the book written by Saki Mustad Khan and translated by Jaduna Sarkar. So what he said in this book, what was the impact of Guru Tegh Bahadur's martyrdom? So he said on Friday, the 27th October 1676, while the emperor was returning from the Jama Mosque and had alighted from the boat in order to mount the movable chair, Takht Rawa, an ill-fated disciple of Guru Tegh Bahadur, threw two bricks, one of which reached the chair. He was seized by the retinue and ordered to be made over to the Kotwal. This was the impact which we may see after the anguish emerged or the created among the people or the followers of the Guru. So what Jaduna Sarkar said, the Sikh Guru Tegh Bahadur was tortured in prison till he courted death as a release, but his
followers thereafter gave no rest to the Punjab officers. So what Gokul Chand Narang, the other historian, what he said uh, on this episode of martyrdom. So his execution was universally regarded by the Hindus as a sacrifice for, for their faith. The whole Punjab began to burn with indignation and revenge. The sturdy Jats, Majha and Malwa only wanted a leader under whose banner they could fight and revenge the insult done to their religion. This leader they found in the youthful Govind. So this was the impact of Guru Tegh Bahadur's martyrdom. He liberated humanity from the clutches of the priestly and the ruling class. So I am thankful to the management of the college for inviting me and listening my lecture. I am thankful to all of you. Thank you very much. Thank you so much, sir. We are blessed to have you with us today. The next speaker today is Dr. Amarjeet Singh from Guru Nanak Dev University, Amritsar. He is a very renowned academician, administrator, author of many books, and associated with various academic and religious bodies. I now request Dr. Amarjeet Singh to deliver his speech and bless the occasion. As I am audible? Yes, sir, you are audible. Yes. Okay. आज हम जिस गुरु के बारे में बात करने जा रहे हैं और कर रहे हैं वो एक यूनिक पर्सनैलिटी थी जिसका ग्रैंडफादर गुरु अर्जन देव जी वो भी शहीद हुए, जिसके पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहब को डिटेन करके ग्वालियर के किले में रखा गया, जिसने आप दिल्ली के चांदनी चौक में शहीदी दी, जिसके बेटे गुरु गोविंद सिंह ने शहीदी दी, जिसकी पत्नी माता गुजरी ने शहादत दी और जिसके ग्रैंडसन्स गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र चारे पुत्रों ने शहीदी दी। ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में आज हम उनका जो 400 साला प्रकाश पर्व है उसके ऊपर उस गुरु को याद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं R.S. चाल साहब, दिलजान साहब, गरेवाल साहब, डॉक्टर संजय प्रसाद, प्रिंसिपल, फॉर्मर प्रिंसिपल पी शेखर जी, माई कलीग प्रोफेसर परमवीर सिंह पुष्पा जी एंड अदर स्कॉलर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स जो इस वेबिनार में हमारे साथ शरीक हुए हैं, सबसे पहले उनको फतेह बुलाता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो ये वेबिनार का विषय है कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इन ह्यूमन काइंड, ये विषय पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ बहुत ही एक महत्वपूर्ण तौर पे जुड़ा हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी का है। तो जब हम इसका मीनिंग देखते हैं लिबर्टी का, तो वर्ड लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री। तो इसके अनुसार ही जो फिलोसफर हैं उन्होंने इनको डिफाइन करने की कोशिश की है कि व्हाट इज लिबर्टी। तो हम देखते हैं जो एक वेस्टर्न फिलोसफर है लॉस्की, he defines liberty as it is the existence of those conditions of social life without which no one can in general
be at his best self. एक और जो फिलोसफर है वो भी वेस्टर्न फिलोसफर है, हीगल, वो फ्रीडम को रिगार्ड्स एज द वेरी एसेंस ऑफ मैन. According to him, it is his distinctive quality. To remove freedom is to renounce one's humanity. ये जो डेफिनेशन जो है फिलोसफी की और हीगल की, इसके बीच में जो लिबर्टी का बात की गई है, जो उनको डिफाइन किया गया है, वो स्पष्ट करता है कि ये ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और हीगल तो ये भी बोल रहा है कि जे हम इसको रिनाउंस कर देंगे तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा. तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो हम देखेंगे, लिबर्टी इज द एबिलिटी टू डू एज वन प्लीजेस और ए राइट और ह्यूमैनिटी एंजॉयड बाय प्रेस्क्रिप्शन और बाय ग्रांट. इन फिलॉसफी जब हम देखेंगे, दर्शन में देखेंगे, तो लिबर्टी जो है it involves free will as constructed with determinism. And in theology, जब हम धर्मशास्त्र में देखेंगे तो liberty is freedom from the effects of sin, spiritual servitude और worldly ties. ये जो परिभाषा है लिबर्टी की वक्फ डिसिप्लिन्स में, वो हमको संकेत करती है कि ये ह्यूमन लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है और वक्त डिसिप्लिन में इनको डिफाइन किया गया है. और जब हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स देखते हैं लिबर्टी के, तो सिविल लिबर्टी है, पॉलिटिकल लिबर्टी है, इंडिविजुअल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, फॉर्म्स हैं लिबर्टी के. Civil liberty is the liberty which each individual enjoys as a member of the society. And political liberty में आता है जो हम देखते हैं, the freedom to exercise the right to vote, right to contest elections, right to hold public office, right to criticize the policies of the government, right to form political parties, interest groups and pressure groups, and the right to change the government through constitutional means. And another जो फॉर्म है लिबर्टी का, वो पर्सनल या इंडिविजुअल लिबर्टी है. इसके बीच में जो मनुष्य को राइट्स मिलते हैं, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, freedom to choose any profession or trade or occupation, the freedom to enjoy the fruits of one's labor, and many more. Economic liberty की फॉर्म में हम देखते हैं, it stands for freedom from poverty, unemployment, and the ability to enjoy at least 3 basic minimum needs of human life: food, clothing, and shelter. एंड लॉस्की जो फिलोसफर है वो लिखता है, इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स सिक्योरिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू फाइंड रीजनेबल सिग्निफिकेंस इन द अर्निंग ऑफ वंस डेली ब्रेड. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर्म ऑफ लिबर्टी. और लास्ट में हम देखेंगे रिलीजियस लिबर्टी. इट मीन्स द फ्रीडम टू प्रोफेस और नॉट टू प्रोफेस एनी रिलीजन. It means the freedom of faith and worship and non-intervention of state in religious affairs of the people. All these forms of liberty depends on the state and the society, and there are some safeguards which are essential for liberty.
love of for liberty. First one is the love for liberty. Only when people are strongly in love with their liberty, that liberty can be really safeguarded. Second one is the eternal vigilance, the commitment of the people to defend their liberty and their full alertness against any encroachment of their liberty is the second most important safeguard of liberty. Means eternal vigilance is the price of liberty. Grant of equal rights to all. For safeguarding liberty, it is essential that there should be no class of privileged persons in society. But, however, grant of some special privileges to the deprived sections of the society can be given and it is essential for them. The role of state in the liberty is very important. जब हम देखते हैं all kinds of liberties enjoyed only when the governments and the society make some laws and rules. Under them we enjoy these liberties. The state, we have to discuss about the states. First of all, various theories regarding the origin of the state have been propounded from time to time. हम देखते हैं कि कितनी थ्योरीज दी गई है, सिद्धांत दिए गए हैं. द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, द फोर्स थ्योरी, द पार्टियाकल थ्योरी, मैट्रियाकल थ्योरी. बट हम देखते हैं जो किसी भी स्टेट की ओरिजिन के बारे में हमारे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई. तो जब हम अपना एंशिएंट इंडियन का लिटरेचर देखते हैं, उसके बीच में भी जो क्वालिटीज होती है और ड्यूटीज है एक रूलर की, उसके बारे में भी जिक्र हमको मिल जाता है. तो सेवरल टर्म्स लाइक राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीति शास्त्र एक्सेट्रा आर यूज्ड for the qualities and duties of a ruler. In Rig Veda, it is mentioned that under a good king, prosperity will prevail. ऋग वेद में जो क्वालिटी एक रूलर की निर्धारित की गई है, उसके बीच में एक चंगा जो शासक है, जो चंगा एक गुड रूलर है, उसके शासन में सारे लोग जो है वो प्रॉस्पर करेंगे, विकास होगा. इसी तरह अग्निपुराण जो है उसके बीच में भी एक बहुत उत्तम जो है एग्जाम्पल हमारे सामने दी गई है. जस्ट एज एन एक्सपेक्टिंग मदर sacrifices her own desires and pleasures lest they should be harmful to the child to be born, the king must sacrifice his own conveniences, inclinations, and pleasures in order to be of the maximum help and service to his people. कि किस तरह एक राजा को, एक शासक को लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कुर्बानी करनी चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए. जो भी उसकी सहूलत है वो पब्लिक के लिए होनी चाहिए, उसके लिए नहीं. इसी तरह ही मार्कंडेय पुराण में भी ऐसा ही है. द बॉडी ऑफ द किंग इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट एंड प्लेजर्स. He has to put up his great troubles and worries while carrying out the royal duty of protecting the subjects and fulfilling the dharma. हम देखते हैं जो फिलोसफर है, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उसके बीच में एक राजा के जो ड्यूटी है उसके बारे में क्लियर कट किया गया है, गाइडेंस दी गई है. बट हम देखते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम although various scholars and spiritual leaders and other texts put forward many valuable theories
of a welfare state, but very often the rulers have misused the state power. जब हमारे फॉरम प्रिंसिपल बात कर रहे थे तो उन्होंने बहुत जो रियल पिक्चर है हमारी सोसाइटी की अब उसको उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो हम देखते हैं कि जो रूलर्स होते हैं वो जो धर्म ग्रंथों में भी उनको गाइडेंस दी गई है उनको छोड़कर कुछ और करने लगते हैं। But it is the moral duty of the ruler to guarantee personal liberty and other fundamental rights to each citizen of his country. He is to protect the honor of his people because death is better than a life of dishonor. The foremost freedom should be that of conscience. तो ये एक हमारे पास वो मैप है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में, लिबर्टी के बारे में हमारे जो इंडियन टेक्स्ट हैं धार्मिक उसके बीच में जो फिलोसफर हैं वेस्टर्न उनके जो थॉट्स हैं। तो अब हम जो सिख धर्म की बात है, गुरु तेग बहादुर की बात है, उसके बारे में बात करेंगे। इस बैकग्राउंड के में जो हमने देखी है, सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी एंड ही कंडेम्ड not only such rulers who were trying to impose their culture and faith on their subjects. उन्होंने अकेला शासक वर्ग को ही क्रिटिसाइज नहीं किया है, गुरु नानक ने ही also condemned such people who adopted the culture and faith of the ruling class under pressure. उन्होंने आम पब्लिक को भी दोषी माना है जब वो किसी प्रेशर के अंदर दूसरा कल्चर, दूसरी लैंग्वेज या कोई और बात जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो सिखिज्म स्टैंड्स फॉर सोशल जस्टिस, ह्यूमन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, एथिकल लिविंग एंड जेंडर इक्वालिटी। And the Sikhs have a long heritage of speaking out against injustice, standing up for the defenseless, working for civil liberties, against human oppression, and fighting for justice where it does not exist. तो ये एक गुरु तेग बहादुर जी का हेरिटेज है जो गुरु नानक देव जी की शुरुआत होती है इसकी। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अपने जब इस डिवाइन मिशन को स्टार्ट किया सुल्तानपुर लोधी से, तो उसने अपने इस मिशन में एक प्रभु की बंदगी, मानवीय बराबरी, धार्मिक स्वतंत्रता, सद्भावना, विश्व भाईचारा, मित्रता, प्रेम प्यार आदि को विशेष महत्व दिया अपने इस मिशन में। और उनके जो समकालीन समाज में ऊंच नीच, जात पात और धर्म के नाम पर फूट डाली गई थी और लोग नफरत, ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे थे, तो गुरु नानक देव जी ने जो डिक्लेयर किया, ना को हिंदू ना मुसलमान, देयर इज नाइदर एनी हिंदू नॉर एनी मुसलमान। तो ये डिक्लेरेशन, ये पैगाम धर्मों के इतिहास में एक क्रांतिकारी घोषणा थी जिसका भाव था कि मानवता विभाजित है, मानवता एक है, जिसको धर्म, नस्ल, जात पात, रस्में, रीतें, सभ्यता, सभ्याचार, रंग रूप आदि की डाइवर्सिटी के कारण बांटा नहीं जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता। गुरु साहब की बुलंदबाज में की गई ये घोषणा ने निराशता के आलम में गुजर रही मानवता के मन में जय धैर्य पैदा किया कि धर्म के नाम पर हुए बंटवारे और खींची गई लकीरों को रद्द करके आपसी प्रेम प्यार, एकता, भाईचारा और मोहब्बत वाले मार्ग का मार्गदर्शक प्रकट हो गया है। जब गुरु साहब को
मक्का में उनसे पूछा गया कि कौन सा धर्म उत्तम है, तो गुरु जी ने स्पष्ट किया था कि प्रभु की दृष्टि में धर्म नहीं बल्कि कर्म का ही महत्वपूर्ण स्थान है। भाई गुरदास ने लिखा है, पुछन कोल किताब नु बड़ा हिंदू के मुसलमान होई, they asked Baba Nanak to open and search in his book whether Hindu is great or the Muslim। एंड गुरु साहब ने जो आंसर दिया था, बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दो में रोई, एंड बाबा replied to the pilgrim hajis that without good deeds both will have to weep and wail। Only being a Hindu or a Muslim one cannot get accepted in the court of the Lord। जो आंसर गुरु साहब ने दिया था वो अपने आप में बता रहा था कि धार्मिक तौर पर किसी से के साथ वितकरा करना अच्छा नहीं है। प्रभु की दृष्टि में एक धर्म अच्छा है और वो ही मनुष्य उसकी कोर्ट में परवानगी लेगा जो अच्छे और नेक कर्म करेगा। तो गुरु अर्जन देव जी भी ऐसा ही लिखते हैं, ऑफ ऑल द रिलीजन्स द बेस्ट रिलीजन इज टू रिपीट गॉड्स नेम एंड टू डू पायस डीड्स। पवित्र जो कार्य है वो ही इम्पोर्टेंट है मनुष्य के जीवन में। तो ऐसा जब गुरु नानक देव जी ने मानव व्यक्तित्व का जय संकल्प प्रस्तुत किया कि सच्चा और धर्मशील व्यक्ति वही हो सकता है जिसके लिए सारी मानव जाति एक कुटुंबिया के समान हो और जो सारे संसार को परिवार तुलनीय समझता हो। गुरु साहब द्वारा चलाए इस धर्म का उद्देश्य पूरी मानवता को सगल जमाती का सिद्धांत दृढ़ करवाना था जिसके अनुसार सारे मनुष्य बराबर हैं। इसीलिए सभी मनुष्य आज़ादी, बुनियादी अधिकारों और इंसाफ के लिए एक समान हकदार है। गुरु साहब की वाणी और उनके जीवन के जो इंसिडेंट्स है वो इस बात की गवाही देते हैं कि जात में जो जोत में जाता अकल कला भरपूर या thy light is contained in the creatures and the creatures are contained in thine light। सर्व ज्योति पसर ही thine light O Lord is pervading all, wherever I see there I see my Lord। इसके बीच में जो हमारे सामने आता है, इसके बीच में एक ही बात सामने आती है, एकता, समानता और साझीवालता उनकी विचारधारा में विशेष स्थान रखते थे। गुरु नानक की विचारधारा में ये गुरु तेग बहादुर की जो हेरिटेज थी वो इसको ही कैरी कर रहे थे जो गुरु नानक ने शुरू किया था। गुरु नानक ज्योति की तरफ से धार्मिक सहनशीलता और आपसे सहयोग वाले एक सुंदर समाज की उत्पत्ति के लिए मजबूत विचारधारा के द्वारा आधारशिला तो गुरु नानक ने ही रख दी थी और आने वाले गुरु समान की तरफ से और भी दृढ़ता इसको प्रदान की गई। गुरु नानक देव जी के प्रभाव के कारण जो विचार आंदोलन अस्तित्व में आया था उसको आपके प्रवर्ती गुरु व्यक्तियों ने न केवल विकसित रखा बल्कि समय और स्थिति के अनुसार उस में विस्तार और विकास भी किया। और मेन जो स्ट्रेस रखा वो था रियलिटी जो है, जो गॉड है, जो सुप्रीम रियलिटी है, परम हस्ती के करतारी, निर्भव, निर्वैर और अलाही सुंदर का वाले स्वरूप की बंदगी करने पर जो ये डिवाइन एट्रीब्यूट्स हैं वो जो है जो उसको रिमेंबर करता है वो उनके जीवन में भी वो जो है उसका हिस्सा बन जाते हैं। इस नवीन जीवन युक्त को अपनाने वाले नफरत और संकीर्ण सोच का त्याग करके धार्मिक कट्टरता, कपट, पाखंड, ऊंच नीच के भेदभाव, कायरता, अज्ञानता और क्रूरता आदि समाज को कुरूप करने वाली प्रवृत्तियों के अंत के लिए कोई भी कुर्बानी करने के लिए तैयार होने लगे थे। ये इम्पैक्ट था गुरु नानक की टीचिंग का और उनके आने वाले गुरु जो थे उन्होंने जो एफर्ट्स किए उसके लिए एक ऐसी सोसाइटी
जो थी उसकी फॉर्मेशन होने लगी थी, जिसमें जो पहले धर्मों के अनुयायी जो आपस में झगड़ा करते थे, जो ब्राह्मण और मौलवी नफरत से मरते थे, नफरत, ईर्ष्या, जलन, निंदा अवगुणों के कारण मानवता शैतानी के रास्ते पर चल रही थी। गुरु नानक और उनके दूजे गुरु सवान के निरंतर प्रयासों से ऐसी नकारात्मक सोच में एक गुणात्मक परिवर्तन आया था। धर्मों की तीव्र प्रतिबद्धता की क्रूरता दूर होने से जो नया फॉर्म जो है सोसाइटी का जो विकसित हुआ, उसके बीच में कौन सा स्लोगन चला, ना को वैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बनाई, नो वन नाउ इज माई एनिमी, nor is anyone a stranger to me and I am the friend of all। जो पहले झगड़ते थे, नफरत करते थे सोसाइटी के लोग, वो ऐसा बोलने लगे कि अब मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। का नाद जब पंजाब की फिजा में गूंजा तो लोगों के मनों में सामाजिक, सोशल जो थी, जो रिलीजियस थी और कल्चरल जो डाइवर्सिटी थी, उसको एक प्रभु की इच्छा के अधीन पैदा हुई, उनमें आई, को समझने की एक समझ विकसित हुई। नए मानव की घड़ी जा रही इस घाट ने ऐसे व्यक्तित्व की सृजना की जो सब में एक ज्योत के को प्रवान करके सबको अपना मित्र समझने लगा। ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बुराई, नो वन इज नाउ माई एडवर्सरी नॉर एम आई एम एनिमी ऑफ एनीवन। तो ऐसा एक सोसाइटी जो क्रिएट की गई, तो साथ ही साथ एक और जो स्ट्रेस दिया गया गुरु सवान के द्वारा, वो था वे सभी धर्म परम हस्ती को मिलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सभी धर्म जो है वो अपने अपने ढंग से परमात्मा को, परम हस्ती को मिलने का एक मार्ग जो है इंसान को दिखाते हैं। और परम हस्ती पर किसी एक खास धर्म का एकाधिकार नहीं है, मोनोपोली नहीं है। और भक्त रविदास ने तो ऐसा गुरबानी में लिखा है, अपन बापे नहीं किसी को, पावन को हर राजा, कि किसी के ऊपर, परमात्मा के ऊपर किसी एक का जो एकाधिकार नहीं हो सकता, और ना ही कोई धर्म यह दावा कर सकता है कि वो ही प्रभु को मनाने का एकमात्र साधन है या माध्यम है। तो सिख विचारधारा के अनुसार किसी भी धर्म में विश्वास रखना मनुष्य का निजी मामला है, और मानव के धार्मिक विश्वास को जोर जबरदस्ती किसी खास सीमा तक सीमित कर देने को सिख धर्म में मान्यता नहीं दी गई। यही कारण है कि गुरु ग्रंथ साहब में इस्लाम धर्म की पूजा प्रणाली से संबंधित पांच नमाजों पढ़ने की को भी बिना किसी जज के स्वीकृति दी गई है। और जिक्र है पांच नमाजों का, समकालीन समाज में रह रहे योगी, काजी, ब्राह्मण आदि भिन्न भिन्न धार्मिक नेताओं को गुरबानी में अपने अपने धार्मिक बुनियादी शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ तक कि अपने अपने धर्म की बुनियादी शिक्षाओं के व्यवहारिक जीवन में हिस्सा न बनाने के कारण इन धार्मिक नेताओं की सख्त रूप में क्रिटिसाइज भी किया गया है। एक और जो एस्पेक्ट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो गुरु नानक ने शुरू किया था। हम समाज में रहते हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत है, शहीदी हुई है, उसका जो बेस है, जो गुरु नानक की विचारधारा है, वो ही है जो गुरु नानक की हेरिटेज थी, गुरु तेग बहादुर गई, वो उनको प्रेरित कर रही थी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गुरु तेग बहादुर की, उसको कैरी ऑन करने की, और गुरु नानक ने ही इस को शुरुआत कर दी थी। जो भी समाज में हो रहा है, खास करके जो इवल है, उसका जो है विरोध करना, टू अपोज द इवल एंड नॉट टू कंप्रोमाइज, नॉट टू इग्नोर इट। दो तरीके हो सकते हैं, जो प्रिंसिपल साहब ने भी जिक्र किया था।
कि हम इग्नोर कर जाते हैं, हमको क्या है। लेकिन गुरु नानक ने ऐसा नहीं किया कि आप बुराई को देखें भी और उसको इग्नोर कर दें या उसके साथ कोई समझौता कर लें। उन्होंने जो मैसेज दिया वो था ना तो कंप्रोमाइज करना है, ना उसको इग्नोर करना है, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करना है, अपोज करना है ऐसी इवल सेंटर्स को, इवल पावर्स को किसी भी रूप में हो। और एक और बात की गई, तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, उनको साथ जो जब आप उसका विरोध करते हैं तो आपको शस्त्र जो है उसका प्रयोग करना पड़े तो आप उसको कर सकते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह था कि ये ही है, जब और सारे हीले वसीले खत्म हो जाते हैं तो आप शस्त्र को उठाना उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो ऐसी एक बैकग्राउंड थी गुरु तेग बहादुर की, जिसको वो कैरी ऑन कर रहे थे नवम गुरु के रूप में, सामाजिक जिम्मेवारी के रूप में, बदी का विरोध और मानवीय अधिकारों की पैरवी करने वाली ऐसी विचारधारा का समय की जो ऑर्थोडॉक्स इंटॉलरेंट फैनेटिक जो रूलर था उसके साथ उनका संघर्ष होना कुदरती था, जिसके प्रमाण स्वरूप पहले गुरु अर्जन देव को शहीद किया गया और फिर गुरु हरगोबिंद साहब को शस्त्र सैन्य संघर्ष भी करना पड़ा। और जब गुरु अर्जन देव को शहीद किया गया था, दिस वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशंस ऑफ सिख्स एंड द मुगल एम्पायर्स, मुगल रूलर्स। और जो उस वक्त मुगल एम्पायर का रूलर था वो जहांगीर था, और उसने ये जो सख्त कदम उठाया था गुरु साहब को शहीद करने का, उसका जो परिणाम निकला वो बिल्कुल विपरीत था। जो उन्होंने सोचा था उसके विपरीत निकला, क्योंकि सिख आंदोलन को वो सप्रेस नहीं कर सका और गुरु हरगोबिंद साहब ने उसका मुकाबला करने के लिए, टकरा करने के लिए सिखों को तैयार किया। शस्त्र जो शिक्षा थी वो देनी स्टार्ट कर दी, और एक और जो पॉलिसी थी मीरी पीरी की वो अडॉप्ट की। और ये जो नीति थी वो वैसे ही लड़ाई झगड़ा करने की नहीं थी अडॉप्ट की गई, जो तो एक मैसेज था कि इन फ्यूचर जब कोई सिख धर्म के राह में रुकावट पाने का जतन करेगा तो उसका जो है उसका डट के मुकाबला किया जाएगा। ये एक मैसेज था जो गुरु हरगोबिंद साहब ने दिया था। तो गुरु नानक साहब का जो एक गुरबानी में आता है कि आपने विरोध करना है, वो गुरु नानक ने ही उसका बेस दिया था। तो गुरु तेग बहादुर उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जब बैठे 1664 से लेकर 1675 तक गुरु तेग बहादुर ने इस विरासत और विचारधारा की अगुवाई की। तो जब हम कंडीशन देखते हैं गुरु तेग बहादुर जी के स्टार्टिंग, जब उन्होंने गुरुशिप के ऊपर अपना कार्य शुरू किया, तो जब हम उसकी कंडीशन देखते हैं तो कैसी है, तो उस वक्त मुगल सल्तनत के मुखिया के तौर पर औरंगजेब को गद्दी नशीं हुए 7 वर्ष से अधिक समय हो चुका था, और उसने राज्य प्रबंध पर अपनी पकड़ भी मजबूत बना ली थी। और दूसरी तरफ सिख धर्म के बीच में जब गुरु हरकृष्ण ने गुरु हराय जी की तरफ से गुरु हरकृष्ण जी को गुरु पदवी की जिम्मेवारी सौंप दी गई, तो उनका उपरांत उनके बड़े बेटे राम राय ने, बाबा राम राय ने बड़ा पुत्र होने के नाते गुरुआई के लिए अपना दावा पेश किया। उसको पहले गुरु हराय जी ने 1661 में दिल्ली भेजा था औरंगजेब के पास, जो उनके कुछ क्वेरीज थी उनको, लेकिन बाबा राम राय वहाँ पर अपनी जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी गुरु हराय जी के तरफ से वो उसको निभाने में असफल रहा था, और वह देहरादून में रुक गया बाद में।
जब राम राय ने अपना जो दावा किया तो प्रारंभिक चरण में औरंगजेब अपनी जिम्मेवारियों और 1662 में वो गंभीर रूप में बीमारी का शिकार हो गया था और कश्मीर में रहा जाकर, और जब वो 1663 में कश्मीर से वापस आया तो उसने इस मामले की तरफ ध्यान दिया और उनके इस मामले में इंटरेस्ट लेने का जड़ा इंटरेस्ट क्या था, उसका मफाद था, वो जानता था कि वो 1648 से 1652 तक मुल्तान में गवर्नर रहा था और उस समय माझा और मालवा के जाट किसानों पर गुरु जी के व्यक्तित्व के गहरे प्रभाव से अच्छी तरह से वाकिफ था। मैं चाहता था कि सिख धर्म का जो गुरु बने वो मुगल हुकूमत का वफादार और समर्थक होना चाहिए, और उसको पूरा यकीन भी था कि वह गुरु हराय जी को अपने हुकूमती दबाव में लाकर राम राय का जो उन्होंने बहिष्कार किया है वो अपना निर्णय वापस ले लेंगे। औरंगजेब जो सोच रहा था तो ऐसी दशा में जब गुरु हर राय साहब राम राय का जो बहिष्कार उसका निर्णय वापस लेंगे तो राम राय गुरियाई प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो वह सरकार के लिए बहुत ही एक लचकीला इंस्ट्रूमेंट बनेगा। जब हम जो कहेंगे वो ऐसा करेगा, ये औरंगजेब की इच्छा थी। और कैसे कंडीशन थे गुरु तेग बहादुर की गुरियाई आरंभ होने के समय मुगल शाही परिवार में भी कुछ बगावत चल पड़ी थी। नए आरंभ हुए धर्म के बारे में जहरीला प्रचार, बादशाही प्रशासन के क्रूर और कठोर व्यवहार ने गुरु तेग बहादुर जी के गुरियाई काल को पहले हो चुके गुरु सभान के गुरियाई काल से बहुत अधिक संकटमयी और गंभीर बना दिया था। गुरु हरकृष्ण जी के ज्योति ज्योत समाने के उपरांत उस अफसर गुरियाई की जिम्मेवारी कबूल करनी औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध उठाया जाने वाला एक कदम था। गुरु तेग बहादुर जी से भली भांति परिचित थे, इसलिए गुरु साहब द्वारा गुरियाई की जिम्मेवारी संभाल लेना यकीनन औरंगजेब की निरादरी करने वाला उठाया गया एक साहसी कदम था। आप जी का जीवन निरसंदेह उस अखलाकी सत्ता को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करता है जिसके आधार पर सिख लहर अपने प्रारंभिक काल से मुगल साम्राज्य की कठोर दमनकारी नीति का विरोध करती आई थी, जो गुरु अर्जन देव जी के गुरियाई काल में अधिक सक्रिय हुई थी। इस प्रकार गुरु तेग बहादुर ने बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में गुरु नानक देव जी की ओर से स्थापित किए गए सिद्धांतों और आदर्शों की पूर्ति के लिए जिम्मेवारी संभाली। गुरु तेग बहादुर जी की सिख धर्म में के संस्थापक गुरु नानक देव के साथ समरूपता उनकी वाणी से प्रकट हो जाती है, जो वही आध्यात्मिक संदेश को समान मार्ग के रूप में प्रचार करती है जो गुरु नानक देव जी ने प्रस्तुत किया था। गुरु नानक देव जी ने जो अपना नया धर्म स्टार्ट किया था उसको जो उन्होंने कंडीशन लगाई थी इस धर्म में आने के लिए, जो तो प्रेम फिल्म का चाहो दो, इफ यू जर्नस टू प्ले द गेम ऑफ लव, स्टेप ऑन माई पाथ, सिर तर तली गली मेरी आओ, अपना शीश अपने हाथ पे हथेली पे रख के आना, with thy head placed on the palm of thy hand, and once you settest thy feet on this path, then lay down you and mind not public opinion. सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर त्रीजे सिर दीजे कान ना कीजे। जे उनकी कंडीशन थी गुरु नानक की, तो उन्होंने ये निर्देश दिया था कि जो मनुष्य जीवित ही प्रभु की दृष्टि में कबूल होकर मरते हैं वे असली शूरवीर हैं। उनका मरना लोक परलोक में प्रशंसीय है। प्रभु की हजूरी में वही इंसान शूरवीर कहे जाते हैं और वह सदा प्रभु की दरगाह में सम्मानित किए जाते हैं। आपने जो लिखा था, मरना मुनसा सूर्या हक है जे होए मरण पर वाणु,
Fruitful is the dying of the brave persons whose death is approved by the Lord. Hereafter, they alone are acclaimed as warriors who receive true honor in the Lord's court. ये भी ऐसा ही गुरु तेग बहादुर ने अपनी वाणी में शूरवीर को महाज्ञानी की संज्ञा दी और उसको निर्दोष, समान दृष्टि वाला, धैर्यवान और सहज प्रकृति युक्त के रूप में चित्रित किया। और उन्होंने बोला, भय काहू को देत न भय मानत आन, whosoever frightens none, nor is afraid of anyone, says Nanak. O my soul, call him a man of divine knowledge. और ये एक आदर्श गुरु तेग बहादुर ने रखा था कि इसके लिए ही जो डिवाइन नॉलेज का जो पर्सन है, महाज्ञानी है, जो उसने समाज में जो स्वाधीनता की बात है वो नहीं माननी है। तो आगे उन्होंने जो ये बोला था, ये एक्चुअली हम देखते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो डिक्लेरेशन जो हुई है, उनमें बीच में अमेरिकन की है 1776 की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की है 1789 में। तो उसके बीच में भी जब था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाज वन ऑफ द मोटोस who was struggling at that time। एंड इसी तरह जो है अमेरिका में भी जो डिक्लेरेशन हुई थी, उसके बीच में भी जो ह्यूमन राइट्स की बात हुई है, उसके बीच में लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो तीन बातें हैं वो प्रमुख हैं। तो जो गुरु तेग बहादुर का जो ये डिक्लेरेशन है, भय काहू को देत न भय मानत आन, ये भी उसका बराबरी करता है ऐसे डिक्लेरेशन की। तो किसी को डराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। गुरु साहब ने हुकूमत की दमना नीति का विरोध करने के लिए पंजाब और उत्तर पूर्वी भारत में दूर दूर तक के क्षेत्रों में जो यात्रा की, और इस मुश्किल समय में गुरु जी का प्रयास था कि लोगों को साहस को भरा जाए और उनको प्रेरणा दी जाए कि उनके वह डरपोकों की तरह अन्याय और जुल्म के आगे ना झुकें। यह गुरु साहब के प्रचार का ही निष्कर्ष था कि लोगों ने शासन की नीतियों का विरोध करने का जज्बा पैदा हुआ। सिख धर्म के न्यायी शासन द्वारा धर्म में किए जा रहे जो वो हस्तक्षेप कर रहे थे, उसको बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। इसकी जो एग्जाम्पल है वो सरहंद के अधीन एक खिजराबाद का जो परगना था, उसका एक बूढ़िया नगर था, वहाँ पर एक सिख धर्म स्थान को ध्वस्त करके एक मस्जिद बनाई गई थी। तो जो उसका प्रबंधक थापा गया था, सैयद जफर दरवेश, उसको सिखों ने हत्या कर दी थी। और जब दूसरे कश्मीर में राज्यपाल बने नवाब इफ्तिखार खान द्वारा दमनकारी नीति का जो शुरुआत की गई थी 1671 में, तो वो जानते थे कि उत्तरी भारत में हुकूमत के विरोध उठने वाले हर आंदोलन को, जो दो आंदोलन की बात आती है, मथुरा के जाट आंदोलन की और नारनौल के सतनामियों की, उनको बुरी तरह से कुचल दिया गया था औरंगजेब की तरफ से। ऐसे कंडीशन में उन्होंने सोचा था कि उनको रक्षा करने वाला एक ही पर्सनैलिटी है, वो है गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर के पास आने का उनका कारण ये था कि मुगलों के 600 वर्ष के राज्य दौरान पंजाब में केवल गुरु हरगोबिंद साहब ने ही हिंदुओं और सिखों को पहली बार सैन्य नेतृत्व प्रदान किया था। इसी को देखते हुए कृपा राम के नेतृत्व में जो कश्मीरी पंडित थे वो अनंदपुर साहब पहुंचे थे, और गुरु तेग बहादुर ने जब उनके पास आए तो उन्होंने इसके लिए अपना जो बलिदान देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि सिख विचारधारा लालच, धमकी या किसी अन्य कारण धर्म परिवर्तन को प्रवानगी नहीं देती, बल्कि निरुत्साहित करती है। और
गुरु की दृष्टि में समस्या कश्मीर घाटी के स्थानीय स्तर तक की ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका घेरा बहुत विशाल था और जिसका संबंध लाखों और करोड़ों गैर मुसलमानों के साथ था, जिनके जीवन पर मजबूत चोट लग रही थी। इससे भी ज़्यादा जो मानवीय नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों का सवाल था, जिसके आधार पर मानव सभ्यता निर्भर करती है। और हम देखते हैं कि सिख धर्म की संस्थाओं ने जो इंस्टीट्यूशन जो है वो अमन, शांति, परस्पर प्यार, मानवता की भलाई, सहयोग, को एग्जिस्टेंस, हारमोनी वाले समाज की सृजना के लिए भरपूर जो कंट्रीब्यूट किया है। और गुरु तेग बहादुर की शहादत मानवीय अधिकारों की स्वतंत्रता के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की अनूठी मिसाल है। समय का बादशाह धार्मिक कट्टरता के कारण दूसरे लोगों को खत्म करने के लिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बल प्रयोग कर रहा था, जिसको रोकने के लिए गुरु साहब ने अपनी कुर्बानी देने से भी संकोच नहीं किया। दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण देने की जय अद्भुत उदाहरण और कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और जो गुरु गोविंद सिंह जी ने विजेता नाटक में लिखा है, तिलक जयू राखा प्राप्ता का किन्नो बड़ो कलू में साका, तो जहाँ पर केवल जनेऊ और तिलक की बात नहीं थी, इसका भाव था हर एक को अपने अपने धर्म में अनुसार बिना कोई रोक टोक के जीने का अधिकार से है। इस शहादत में मानवीय अधिकारों और अंतरात्मा की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे निहित हैं। गुरु तेग बहादुर जी का विरोध व्यक्ति के निजी धर्म में राज्य के जो दखलंदाजी थी उसके विरुद्ध था। इसका अर्थ यह स्पष्ट घोषणा करना था कि किसी व्यक्ति की जमीन पर राज्य का कोई अधिकार नहीं और एक धर्म को मानने वाले एक सारांश समाज की सृजना के हर प्रयास का विरोध करना जरूरी है। और मानक समाज में जो हमने पहले किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक गुरु नानक ने बहुत बड़ा एस्पेक्ट दिया था, मानव समाज में रहते हुए अपने परिवार और समाज में रहने वाले दूसरे समुदायों की मदद भी करनी है, क्योंकि सभी की सुरक्षा, सलामती और भलाई सबकी जिम्मेवारी है। और इसकी एग्जाम्पल ये कैसे करनी है, गुरु तेग बहादुर जी ने विश्व को यह सबक सिखाया है कि दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा और मदद के प्रति कैसे जिम्मेदारी निभाई जाती है। और जो एक पोइट हुआ है चांद, उन्होंने लिखा है, तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए, बांह जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजे बांह ना छोड़िए। ये था किसी दूसरी धर्म को मानने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेना। और जो औरंगजेब था उसको देखते हुए, मुगल अंपायर को देखते हुए ये कोई छोटी बात नहीं थी जो एक्सेप्ट की थी गुरु तेग बहादुर जी ने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो एम्परर था उस टाइम वो भारत की सरजमीन तो एक धर्म को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए पॉलिसी उसने अडॉप्ट की हुई थी। लेकिन गुरु साहब ने, गुरु तेग बहादुर ने जो पीड़ित सिर थी उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मुगल अंपायर का विरोध किया और शहादत देने का निर्णय लिया। तो ऐसे गुरु तेग बहादुर ने भयभीत और निरस्त हो चुके समाज को हौसला दिया। तो इसीलिए उनको, जो एक हिस्टोरियन है वो गुरु तेग बहादुर जी को द प्रॉफिट ऑफ एश्योरेंस या जो टर्म देता है, उसको पदवी देता है गुरु साहब को, कि उन्होंने एक भरोसे का फरिश्ता है वो गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने दूसरे धर्म के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शहादत दी। गुरु जी जानते थे कि जो फरियाद करने वाले उनकी शरण में आए हैं वो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, और यदि उनकी सहायता ना की गई तो संभव है कि वो अपना अस्तित्व भी ना बचा पाएं। ऐसे समय गुरु जी के सक्षम दो विकल्प थे। प्रथम, जय कि वे शरण आए
लोगों की सहायता की जाए, और दूसरा था कि उनकी दुर्दशा को अनदेखा कर धर्म और नेकी के मार्ग से मुख फेर लिया जाए। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने प्रथम विकल्प चुना और निर्बल, कमजोर, फरियाद करने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए वरदान देने का निर्णय किया। और जो ये निर्णय था, हम देखते हैं यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में, जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई है 1948 में, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बीच में इस डिक्लेरेशन में किया गया था आर्टिकल 18 में, एवरीवन हैज द राइट ऑफ टू फ्रीडम ऑफ थॉट, conscience and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship. तो ये है, हम देखते हैं कि 1948 में, लेकिन जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी है वो इससे 273 ईयर्स पहले, 273 साल पहले गुरु साहब ने ये बात की थी ह्यूमन राइट्स की। ये घटना पश्चिम में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना से भी बहुत पहले की बात है। जब हम देखते हैं, हम यूरोप में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई है, उसके से भी बहुत पहले की बात है। और गुरु साहब ने हर मनुष्य की इच्छा के अनुसार प्रभु की बंदगी करने की, स्वतंत्रता के अधिकार की अवधारणा को ऐसे समय में आगे बढ़ाया या पूरी दुनिया में धार्मिक सहनशीलता, इंटॉलरेंस थी। और ये बात हम देखते हैं, एक जो फ्रांस का जो थिंकर है वॉल्टेयर, उसने भी जो बोला है, उससे भी एक सदी पहले, 100 साल पहले ये बात की थी। वॉल्टेयर ने कहा था, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ जो राइट टू से इट। और ये उससे भी 100 साल पहले बात गुरु साहब ने कर दी। जिस स्थान पर गुरु साहब जी शहीद हुए थे, वो वहाँ पर जहेदार भगीरथ सिंह ने गुरुद्वारा श्री सिंह साहब की स्थापना की, और आज लाखों लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह पवित्र स्मारक अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के संकल्प का प्रतीक है। भले ही ऐसे कार्य के लिए चाहे अपना जीवन का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, गुरु साहब ने मानवता की भलाई के लिए आत्म बलिदान के सबक को दृढ़ करवाया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ने केवल सिख इतिहास में नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास में दूरदर्शी परिणाम प्राप्त हुए। कर्मवीर योद्धे गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन कहकर सम्मानित किया। गुरु तेग बहादुर की शहादत मानव स्वतंत्रता और सम्मान के पक्ष में इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी। उनकी शहादत विश्व इतिहास में अभूतपूर्व है, क्योंकि उनसे पहले किसी ने भी दूसरों के धर्म की मान्यताओं के रक्षा के लिए ऐसा बलिदान नहीं दिया और आज तक नहीं दिया। आज गुरु साहब के शहादत की सभी शिक्षाएं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। इस शहादत का जो इम्पैक्ट है वो भी प्रोफेसर परमवीर ने बोल दिया था कि औरंगजेब के ऊपर सिखों ने ईंट से ही हमला कर दिया था। लेकिन इस शहादत के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने उत्पीड़न लोगों को, जो सदियों से गुलामी का जीवन जी रहे थे, खालसा के रूप में बहादुर योद्धा बना दिया। इस बहादुर खालसा ने एक शताब्दी की अवधि के दौरान ही विदेशी आक्रमणियों द्वारा पंजाब और भारत पर किए जाने वाले हमले को हमेशा की ये जो उनके रास्ते थे, जो खैबर दरा था। आज हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या प्रॉब्लम क्रिएट बनी हुई है, लेकिन वहाँ से ही आते थे उस रास्ते के, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया और भारत के ऊपर तब किसी ने भी मुड़ के हमला नहीं किया। और ये काम करने वाला था महाराजा रणजीत सिंह। मुगल 1000 साल में ऐसा शख्स हुआ है महाराजा रणजीत सिंह, जिसने उस रास्ते को बंद किया और हमेशा के लिए बंद कर दिया। और हम देखते हैं लास्ट में जो गुरु नानक देव जी वालों जो
मानववादी एक विचारधारा का प्रचार किया गया था। गुरु तेग बहादुर जी उसकी अगुवाई कर रहे थे और दूसरे पास से मुगल बादशाह औरंगजेब एक जो सोच थी फनेटिक सोच का वो धारनी था, जिसका घेरा भी सिर्फ मुसलमानों में बीच में भी एक ग्रुप तक था, सीमित था, सुन्नी मुसलमान तक, और शिया मुसलमान जो सूफी के भी का भी वो विरोध करता था औरंगजेब। इसलिए उसने बहुत ही जो उसका नज़रिया था बहुत कट्टर बन गया था। सम हिस्टोरियन से कि औरंगजेब को अपनी पॉलिटिकल जो कंपल्शन थी उसके कारण उसको ऐसा जो रुख लेना पड़ा, अख्तियार करना पड़ा। लेकिन जो बाद में इन फ्यूचर जो कुछ हमारे सामने आया, जो घटनाएं हुई, उनसे हम देख रहे हैं कि जो कट्टर नीति थी औरंगजेब की, वो समस्या का जो हल नहीं थी, और जिन शक्तियों को वो दबाना चाहता था औरंगजेब की गलत नीति के कारण, वो देर और भी बलवान हो गई और इन द एंड मुगल अंपायर का पतन भी उनके हाथों से हुआ जिनको वो दबाने की कोशिश कर रहा था। और ये लास्ट और फाइनल इम्पैक्ट था गुरु तेग बहादुर की शहादत का। इन्हीं के साथ मैं अपना जो आज का जो लेक्चर है उसको समाप्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आप गुरु नानक कॉलेज जो धन्यवाद के है जो कॉलेज गुरु नानक कॉलेज, इसके RS चाहल, जो सरदार दिलजान सिंह गरेवाल जी, डॉक्टर संजय प्रसाद प्रिंसिपल, प्रोफेसर शेखर फॉर्मर प्रिंसिपल, पुष्पा जी जिन्होंने आज का जो वेबिनार को मोडिनेट किया है, और एक बार जो सब जुड़े हैं उन सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि हम ऐसे गुरु जिसने सिर्फ एक फैमिली है जिसकी आरंभता गुरु रामदास जी के साथ होती है, उनके पुत्र गुरु अर्जन देव जी, उनके बाद गुरु हरगोबिंद साहब के पुत्र गुरु तेग बहादुर और गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह, और एक फैमिली है जिसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को चेंज कर दिया है अपनी शहादत देकर, कुर्बानी देकर, और हमें इन की कुर्बानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बीच में सिलेबस में भी इसको पार्ट बनाना चाहिए कि कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ की हैं और देश की रक्षा के लिए, देश की यूनिटी के लिए, देश के जो हमारा भाईचारा है उसके लिए, तो उसको बचाने के लिए कैसे कंट्रीब्यूट किया है वो सब आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए। और एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। What a wonderful exchange of knowledge we had today. Thank you, sir. It's a pleasure to have you with us today. Your words illuminated us with the thoughts of Guru Sahib. Now, I request Secretary Guru Nanak College, Sardar Diljan Singh Grewal, to propose the formal vote of thanks. Over to Grewal, sir. शुक्रिया पुष्पा जी। आज हम लोग इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करके जो हमारे बहुमूल्य स्पीकर साहब जिन्होंने अपने विचारों से और गुरु साहब के जीवनी से हम लोग को अवगत कराया, उसके लिए बड़े ही हम लोग ऋणी हैं और हमेशा इनका जो योगदान है हमारे कॉलेज के प्रति वो हमेशा याद रखेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर परमवीर सिंह का पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों को से अवगत कराया है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से मैं भी कुछ साल जुड़ा रहा, इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहा, यहीं पर पढ़ाई की,
और अगर मैं कहना चाहूँगा कि अपनी जीवनी को अगर कुछ लिखना होगा तो सुनहरे अक्षरों में मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखूंगा, क्योंकि एक ज़िंदगी जीने का जरिया और सलीका इस यूनिवर्सिटी ने मुझे सिखाया है। तो मैं तहे दिल से डॉक्टर परमवीर सिंह का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय हम लोग को दिया और अपने विचार गुरु साहब के बारे में प्रकट करे। आज डॉक्टर अमरजीत सिंह को हम लोग ने सुना, जो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनकी जीवनी के बारे में जो हम लोग को बताया है वो बहुत ही मूल्यवान है। और गुरु साहब की जीवनी और उनके बेटे की जीवनी सिख समाज में एक प्रेरणा स्रोत है। और जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी हैं समाज के लिए, चाहे वो सिख समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, वो सुनहरे इतिहास में लिखा गया है। और शायद ही ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं कि इस तरह की कुर्बानियों भरा इतिहास गुरु तेग बहादुर जी और उनके बेटों का और उनके पिताजी का रहा है। सो मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह का, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से बिलोंग करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने कीमती समय हमें दिया और अपने सुंदर विचारों से गुरु साहब के बारे में हम लोग को अवगत कराया है। क्योंकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आज भी देखने में एक अपने आप में अजूबा है। उसको देखने से, उसमें पढ़ने से, क्योंकि यूनिवर्सिटियों से संपर्क रहा है, वहाँ के स्पोर्ट्स स्टूडेंट हो चाहे पढ़ने वाले हों, मेरा उनसे ज़्यादा संपर्क रहा है। और जो डेडिकेशन इन्हों में पाई जाती है शायद ही मैंने और भारत के यूनिवर्सिटियों में देखी है। सो डॉक्टर अमरजीत सिंह का बहुत ही धन्यवाद जो हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं। मैं हमारे पूर्व प्रिंसिपल पन्नेंदु शेखर जी का, जो आज हमारे बीच है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने बड़े ही साल गुरु नानक कॉलेज को सेवा दी है और इतनी ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय इनके माथे पर जाता है। और इनके दिखाए हुए कदमों को हम लोग इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और इनको नई ऊंचाइयों पर इस कॉलेज को लेके जाएंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर संजय प्रसाद जी का, जो इस वेबिनार को संचालित करवाने में बड़ी ही सराहनीय भूमिका इन्होंने निभाई है। और कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज हमारे बीच इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पुष्पा जी का, जिन्होंने इस मंच का संचालन बड़े ही बखूबी तरीके से किया है, और डॉक्टर वर्षा सिंह का, जो टेक्निकल सपोर्ट है आज के वेबिनार में। ये दोनों ही हमारे बड़े ही होनहार टीचर हैं कॉलेज के और हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, और चाहे सेमिनार हो चाहे वेबिनार हो, उसको संचालित करने में, आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। मैं डॉक्टर सुरजीत कौर चहल जी का और डॉक्टर रमिंदरजीत कौर जी का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं और इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं। क्योंकि चहल जी तो हमारे बीच बराबर, जब भी कोई प्रोग्राम होता है सेमिनार का, उनको इनवाइट किया जाता है, हमारे बीच रहते हैं और अपने विचार से हम लोग को बहुमूल्य विचारों से अवगत कराते हैं। तो मैं फिर से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और शुक्रिया करना चाहूँगा कि आज आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। मैं कुछ लाइनें डॉक्टर अमरजीत सिंह जी ने जो बताई हैं वही बड़ी ही बहुमूल्य लाइनें हैं, जो हमारे समाज में, सिख समाज में और ग्रंथों में भी लिखा गया है कि धर्म से ऊपर जो होता है वो कर्म होता है। धर्म कुछ नहीं होता, कर्म आदमी का ही धर्म होता है। कर्म अच्छे करिए तो धर्म में आपका नाम भी ऊंचा होगा, समाज में भी नाम आपका ऊंचा रहेगा। जात पात ऊंच नीच जो गुरु साहब ने हम लोग को शिक्षा दी है, इसके ऊपर उठ के काम करना चाहिए। दूसरों के प्रति संवेदनशील, दूसरों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। जिस तरह
जुर्म है और जुर्म सहना भी एक जुर्म है, तो हमेशा उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ना ही जुर्म करना चाहिए, ना ही जुर्म सहना चाहिए। ये गुरुओं की ही दी हुई शिक्षा है जो आज हम लोग ने ग्रहण की है। इसलिए ना जुर्म किया जाए और ना ही उसको सहा जाए। दोनों ही तरीके से अपने आप में एक जुर्म है। किसी भी देश का या समाज का या घर का जो मुखिया होता है उसके ऊपर दायित्व होता है। जैसे डॉक्टर अमरजीत सिंह ने कहा कि कोई भी मुखिया हो, चाहे देश का हो, चाहे घर का हो, चाहे समाज का हो, उसको अगर उसके ऊपर दायित्व उसके ऊपर मिला है तो उसको निर्वाह उसको करना चाहिए, चाहे वो अपना बलिदान दे के हो, चाहे अपनी कुर्बानी दे के हो। अगर घर का मुखिया ही या देश का मुखिया ही भाग जाएगा तो पीछे में परिवार या देश का हालत क्या होगा, ये आप हम लोग सब समझ सकते हैं। इस करके जो इतना समृद्ध इतिहास है हमारे गुरुओं का, जो उन्होंने शिक्षा दी है, आज 400 साल पहले से जो उनके विचार आज व्यक्त किए गए हैं, वो आज भी हम लोग को जहन में आते हैं और उन्हीं की शिक्षा और विचारों को लेकर हम लोग आगे और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का, वक्ताओं का, हमारे साथ जुड़े सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पूरब के उपलक्ष्य में आप सभी को बधाई देता हूं और आज का दिन आपके लिए शुभ हो। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू पुष्पा। Thank you, sir. The end of the story is always a new beginning in many ways. On this note, let us conclude a remarkable and knowledgeable webinar. With the blessings of Vahe Guruji, we'll have more such events to nourish the mind with new perspectives in future also. This brings the end of this auspicious webinar. It has been a pleasure to host this event. I wish you all a wonderful day ahead. वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।